congratulations, Akhil, for clearing UPSC mains, and you are going to crack UPSC interview as well. And very soon we'll find a very, very bright, smart, energetic civil servant of India. Thank you, sir, and good afternoon. Good afternoon, Akhil. Let us first take your queries or questions if you have regarding your DAF, and then we'll move forward. Sir, as I am already in the government service, sir, currently I am working as a tax assistant in CDST Vadodara, sir. Right. Okay. My first question is like being a part of the government, sir. What kind of questions do I need to prepare, sir? Because last time as I appeared in the interview, they asked me a few questions regarding AFP Commission and regarding corruption and other issues. So on these lines, what other issues should I prepare, sir? This is one of my questions, sir. Okay, Akhil, I'll answer you. I think there's an audibility issue also. It's not clearly audible. Hello, sir. Yes, Akhil. Is it audible, sir? Yes, it is audible. Last time you appeared for interview, but certain questions were asked related to your service, right? Regarding corruption and all, pay commission and all you said, Yes. right? So what all, how we should go about this particular part of your interview, right? That is a question. Okay. See, since you are already in job, Akhil, so you will be asked questions from your department from this area first. Because in your case, it is different because you're not like other candidates who are not working. You are already working. So obviously you have to give a special emphasis on this area of your desk. You can frame certain questions which might be asked to you, although you may not be exhaustive. I mean, you cannot tell with certainty that I have made enough questions and answers, and I'm sure that they are going to ask all the questions from here. But still, you can prepare certain questions which you might expect from them. Let me tell you what kind of questions they might ask you, although it would be very easy, but it might become difficult if you're not prepared. Say, for example, what is tax? Are you getting my point? Now see, since you have prepared so many questions, but you do not know exactly what is tax, so you'll fumble. It will be very clear that this is tax. Right? So that way you can start framing the questions that they might ask. Now, since you are a tax assistant, and you're working in this indirect tax department, right? Yes, sir. That is in central indirect tax and customs department. Am I right? Yes, sir. Okay. So they might ask you that your department is notorious for corruption. They might tell you that way just to provoke you. We find corruption over there. So I'm giving an index, let's say 0 to 100, the corruption, the index. Where do you find yourself in that 0 to 100 corruption level? Sir, I think Right? there is. These are the, I do not want your answer. What I'm saying, if they ask you this kind of questions, if you prepare properly, then you'll be able to answer. Say, for example, you have said, since you're not prepared, you'll say, I'm zero. Zero corruption is there. So the next question would be, what is corruption? And if you cannot explain them what is corruption, then you'll say that, how did you say that it is, you are not corrupt? When you do not know what is corruption, then how are you going to say that I'm not corrupt? Right? If you say, sir, I am 10% corrupt, then say, beta, अभी 10% हो, जब मौका मिलेगा तो पता नहीं तुम क्या क्या कर लोगे. आप हम फंस सकते हैं वहां पे. तो अगर हम उसको थोड़ा सा पहले से ही अगर हम बना लें कि करप्शन का मीनिंग ये है, ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये करेंगे, वो पूछेंगे तो वो बोलेंगे, तो ऐसा हो सकता है.
बहुत इंटरेस्टिंग है अखिल कि हम दोनों का एक जगह पे कॉमन है। मैं भी सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में काम करता था और मैं खैर उस समय टैक्स असिस्टेंट नहीं था, मैं उस समय इंस्पेक्टर था वहां पे। वो शेयर करता हूँ आपके साथ, मजा आएगा आपको। मैं इंटरव्यू देने गया यूपीएससी में, तो चेयरमैन बोलता है कि और सुशांत कितना कमा लिया है। अब ऐसे ही पूछा हिंदी में, ये कितना कमा लिया है। अब उसका टोन जो था ना वो ये था कि मतलब कोई 2 नंबरी वाला। तो मैंने बोला सर मैंने तो इतना, मैं सर्विस टैक्स में था उस समय तो ये जीएसटी वाला नहीं था, सर्विस टैक्स। तो मैंने बोला सर इतना हमने कलेक्ट कर दिया है। तो बोला नहीं नहीं कलेक्ट तो किया है लेकिन कमाया कितना है। तो मैंने बोला सर मैंने इतना सैलरी लिया है और सैलरी तो कमाया है सर मेहनत करके। तो बोला हाँ ठीक है। मैं वो चाह रहे थे कि मैं मुंह से बोलूं कि सर मैं करप्ट नहीं हूं। अगर मैं बोलूं ना करप्ट नहीं हूं तो बोलेगा बेटा मैंने तुमसे पूछा है क्या, मैंने तो पूछा है कि कितना कमाया है। तो कमाने का मतलब है इज्जत कमाना हो सकता है, सैलरी कमाना हो सकता है। तो मैं समझ गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पहले से मैं प्रिपेयर था ऐसे क्वेश्चंस के लिए। हम लोग जैसे अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं वैसे हम लोग भी बिफोर इंटरव्यू हम बात करते थे सीनियर्स के साथ, तो पता था कि ये पूछ सकते हैं। तो जैसे ही बोला कि कितना कमा, मैं समझ गया दाल में कुछ काला है। तो मैंने बोला सर इतना हमने कलेक्ट किया है। और सर्विस टैक्स तो हम कलेक्ट करते हैं, कमाते थोड़ी है गवर्नमेंट के लिए। तो बोला नहीं नहीं मैं पूछा कि कितना कमाया है। तो मैंने बोला सर मैंने इतना सैलरी कमाया है, बाकी सर जो इज्जत और जो भी नाम वो सब कमाया है। तो वो मैं गया ही नहीं। अगर मैं मेरे मुंह से निकल जाता कि मैं तो सर करप्ट नहीं, तो बोलेगा तुम्हारा माइंड में करप्शन है बेटा। मैंने तो तुमसे कब पूछा कि तुम करप्ट हो, मैंने कब बोला है। मैं तो ये पूछा है कि कितना कमाया है, तो तुम पे सैलरी नहीं कमाया क्या। आप समझ गए। तो इफ यू प्रिपेयर अ क्वेश्चन बैंक ये पूछ सकते हैं भाई टोटल कलेक्शन कितना है टैक्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, परसेंटेज वाइज कितना है, इस बार के बजट में क्या है ना। फिर कस्टम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना, आपका जो एज अ टैक्स असिस्टेंट व्हाट ऑल थिंग्स यू डू, है ना। या इससे रिलेटेड अगर कुछ है, जैसे मेरे से उस समय मुझे याद है पूछा था कि एनडीपीएस एक्ट के बारे में, वो ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स वाला एक्ट है ना, उसके बारे में पूछा था। तो मैंने बता दिया था कोई सर्विस टैक्स के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। वैट एंड उसमें क्या डिफरेंस है, जो पहले था सेल टैक्स एंड वैट में क्या डिफरेंस, बहुत पुराना है ना उस जमाने का क्वेश्चन ये सब। सो दैट वे। और ये भी पूछा था कि व्हाट इज टैक्स, तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि जो पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लोगों से, जो लोगों को देना ही पड़ता है वो टैक्स है, तो बोलेगा ये तो दादागिरी हो गया, ये तो हफ्ता हो गया कि तुमको देना ही पड़ेगा। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि सब टैक्स का मतलब है कि वॉट एवर मतलब द गवर्नमेंट विल आस्क यू टू पे एंड यू हैव टू पे, यू कैन नॉट इवेट, बिकॉज दैट मनी विल बी स्पेंड फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं बताया तो बोलेगा ये तो हफ्ता हो गया कि तुमको देना पड़ेगा। तो जैसे आपने दोनों को ऐड कर दिया तो टैक्स हो गया। फिर आप बोलेंगे कि हाँ सर ये चीज बजट में दिखाया जाता है, एक साइड में रिसीट और दूसरे साइड में एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। दैट वे यू हैव टू प्रिपेयर योर डिपार्टमेंट। और क्वेश्चन बताओ आपके माइंड में अगर है तो। Sir, my another question is that my column regarding hobbies and extracurricular activities, it's like not much filled. So like, can that affect the interview? Because last time I did not get good score, so I was concerned should I put more in that. So. See, the first thing is that prizes, medals and scholarship you have written winner of speech competition organized by Nehru Yuva Kendra. ये क्या यूनिवर्सिटी लेवल का है या स्टेट लेवल का है या नेशनल लेवल का है? यूनिवर्सिटी लेवल का है। यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो ये तो ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने किया है, स्पीच कंपटीशन है ना। नाउ द थिंग इज, से फॉर एग्जांपल स्पीच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड एक्सटेम्पोर? स्पीच किसको बोला जाता है? आप समझ गए ना। इफ यू प्रिपेयर, जैसे मान लो अगर आप प्रिपेयर है तो बोल देंगे कि स्पीच जो वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, एक्सटेम्पोर इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। जैसे आप आए माइक के सामने, मैंने बोला अखिल आप ना इंडियन इकोनॉमी के बारे में 3 मिनट बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीच या एक्सटेम्पोर? एक्सटेम्पोर हो गया, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप बता रहे हैं। अगर मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर आपको स्पीच देना है, जैसे देखना पार्लियामेंट में स्पीच होता है ना, कि इसके बाद स्पीच का मतलब एक स्ट्रक्चर है कि आप ये चीजें बताएंगे, वो स्ट्रक्चर होता है। ऐसे बताना है कि सर मैं स्पीच का हूं, एक्सटेम्पोर नहीं, कि ये स्ट्रक्चर होता है। तो जब आप इसको तैयार कर लेंगे ना,
तो बहुत इजीली आपके लिए वो एरिया इजी हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपने नेहरू लिखा है, अब आपको तैयारी करना पड़ेगा इसको, नेहरू के बारे में। अब वो पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, बट एक हल्का फुल्का तैयारी तो चाहिए। बिल्कुल। क्या आप बताओ, नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या कंट्रीब्यूशन है नेहरू का, एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या कंट्रीब्यूशन है? अब अगर तैयार है तो 3-4 चीजें बता ही देंगे कि सर ये कंट्रीब्यूशन है। अगर नहीं है तो अखिल आपको तो पता ही, ऑलरेडी आपने दिया इंटरव्यू, इतना ज्यादा प्रेशर रहता है वहां, तो अपना नाम भी भूल जाते हैं हम लोग जब पूछते हैं। 5 लोग ऐसे करके देखते हैं आंख फाड़ फाड़ के, तो उस समय तो डर लगता है कि अगर ये भी बताया तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरे हो जाता है ना दिमाग का, आपको तो पता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा तैयारी कर लो नेहरू के बारे में, है ना। और इससे रिलेटेड जो है नेहरू का डेथ कब हुआ था, मतलब जो भी पॉसिबल है, पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो आप बना लो। नेहरू का जो जैसे पंचशील है वो कॉन्सेप्ट क्या है, नेहरू का जो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या वो है, कुछ चीजें है ना इस टाइप से, है ना। फिर लीडर ऑफ स्कूल क्लीनलीनेस ड्राइव, अगेन सी दिस इज समथिंग, जब आप स्कूल क्लीनलीनेस ड्राइव बोलते हैं तो स्वच्छ भारत मिशन आ जाता है। जी सर। है ना, आप उस एरिया को आपको कवर करना पड़ेगा। फिर वो स्वच्छ भारत मिशन का अभी कितना साल कंप्लीट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि कब शुरू हुआ था, कितना साल कंप्लीट हुआ है, और क्या उसका रिपोर्ट के हिसाब से वो सक्सेसफुल रहा है या नहीं, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है। कि उनको तो भाई पूछ चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन उनके पास तैयार है बहुत सारे। उनको जब दिख जाएगा क्लीनलीनेस, उस समय दिमाग में ये आएगा कि अभी स्कूल क्लीनलीनेस ड्राइव है तो नेशनल लेवल पे कोई क्लीनलीनेस ड्राइव है या नहीं, फिर आपको बोलना ही पड़ेगा स्वच्छ भारत मिशन। फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है चलो इसी में से 4 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। अगर आप तैयार है तो कोई इशू नहीं है, नहीं है तो फिर आप समझ गए फिर नहीं होगा, उस तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। अच्छा, रीडिंग नॉन फिक्शन बुक्स, तो अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि नॉन फिक्शन बुक्स में जैसा आप क्या क्या आपने पढ़ा है रिसेंट पास्ट में। तो अब अगर आप रिसेंट पास्ट में कुछ आपने पढ़ा है नॉन फिक्शन बुक्स, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें क्या है, वो भी बताना पड़ेगा, है ना। 4-5 नॉन फिक्शन जो पढ़ते हैं वो सब बताना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें से और क्या आपके माइंड में है जो आप जानना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दिस हॉबी वाला क्वेश्चन जो है? सर इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है, बिकॉज मुझे जैसे 1-2 सेशन और लिया था तो कुछ बोल रहे थे कि आपका एम्प्टी है बहुत ज्यादा ये सेक्शन, तो कुछ ऐसा नेसेसरी है सर कि कुछ इसमें ऐड करूं जैसे हॉबीज? मैं आपको फिर एक बात बता देता हूं, जैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है ना कभी ऐसा होगा कि अगर मैं इसको भर दूं ना, 3 आपने लिखा है मैं इसको 30 कर देता हूं अपना हॉबी, वो 1 मार्क भी आपको एक्स्ट्रा देने वाला नहीं है। लिखने को तो हम कुछ भी लिख दे, पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो वो उस चक्कर में मत जाना कि कितना आपका ब्लैंक नहीं है, आपका जो है वो इनफ है। आपको सिर्फ जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका हॉबी है वो जेन्युइन है, और आपके पास जो एक्सपेक्टेड जो नॉलेज है वो है। जैसे स्पीच मैंने बोला कि व्हाट इज स्पीच, अगर वो आपसे बोलेंगे कि भाई आप स्पीच कंपटीशन का विनर हो और आपको ये भी नहीं पता कि स्पीच होता क्या है, तो फिर उस समय आपका दिमाग में ये आएगा कि ये धरती माँ 2 हिस्से में बढ़ जाओ और मैं इसके अंदर घुस जाऊं, है ना। इतना ये तो सोचा ही नहीं था। वो वहां से फिर आपको कॉन्फिडेंस में इतना डाउन होगा और फिर आपको भी लगेगा कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। मैं विनर हूँ और मुझे ये भी नहीं पता है, और आप बोलना, आप समझ गए ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप सिर्फ उतना ही करो जो जहां पे होता है ना कि अगर मैं बहुत मामूली क्वेश्चंस करूं और आप उसका जवाब दे सकें। अब भारी भरकम क्वेश्चन का तो पता नहीं क्या पूछेंगे, उसमें तो आप सॉरी बोलने का आपके पास लाइसेंस है, बोल देना सॉरी सर इतना ही मुझे आता है। बेसिक्स फाउंडेशंस पे आप ज्यादा ध्यान दो। तो मेरे हिसाब से तो जो आपने लिखा है वो इनाफ है, और क्वेश्चंस हजारों बन सकते हैं इसमें से नॉन फिक्शन बुक्स में। जैसे मान लो अभी आपने कौन सा नॉन फिक्शन बुक पढ़ा है अभी एकदम हाल फिलहाल में? सर अभी तो सेपियंस पढ़ा था सर, हाँ, तो अब क्या है उस बुक का एक्चुअल जिस्ट क्या है? सर जिस्ट द ऑथर टेल्स अबाउट द डेवलपमेंट एंड इवॉल्वमेंट ऑफ आवर सोसाइटी राइट फ्रॉम व्हेन वी वर हंटर गैदरर टू आवर प्रेजेंट डे, एंड आल्सो द ऑथर रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑन हाउ आवर करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स may shape our future, like the artificial intelligence, and how they will affect our society. This was explaining that. Now he say आपका there may be a lot of questions, है ना?
जैसे सेपियंस सबने पढ़ा है, तो होमो सेपियंस भी सुना होगा आपने। जी सर। होमो सेपियंस के अलावा और कौन कौन से थे उस जमाने में, है ना? वो लोग एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? होमो सेपियंस रह गए, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए। उसके पीछे क्या कारण है ना? तो ट्राई टू फ्रेम एन आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। मेरा सजेशन ये होगा कि आप पूरे डेफ को ना एक बार आराम से बैठ के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप सोच सकते हैं। अब इसके लिए आप किसी दोस्त का या पेरेंट्स का किसी का भी सपोर्ट ले सकते हैं कि भाई आप लोग हमें 20-20 क्वेश्चन दो, आंसर हम देख लेंगे। आप क्वेश्चन दो, उससे क्या होगा आपके पास देखना बहुत अच्छा खासा वो आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन बैंक। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपका डेट ऑफ बर्थ है 2001। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि 2001 में कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का जो इवेंट्स है, आप बताओ, ठीक क्वेश्चन था जी सर। तो अगर आपके पास आंसर है कि ये 3 चीजें बताएंगे नेशनल, ये 3 बताएंगे इंटरनेशनल, तो आप दे ही देंगे आंसर। फिर आपका 2001 में ऐसा कोई पर्सनालिटी जिसका इसको कुछ अवार्ड मिला है इंटरनेशनल लेवल में, या डेथ हुआ है, या कुछ बर्थ है, व्हाटएवर है या नहीं? अगर है तो एक आंसर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है ना? ईच एंड एवरी एरिया में से, जैसे आप सहारनपुर से हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट भी सहारनपुर है, तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसा फीचर्स जो आप नेशनल लेवल पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज है जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में शायद नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है? मान लो ये क्वेश्चन बना, वुडन कार्विंग है सर। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन बना, तो आप इससे लिंक्ड फर्दर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल सर, है ना? फिर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आप अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं और सहारनपुर में पोस्टेड होते हैं, तो 3 ऐसा काम जो आप करना चाहेंगे जो सहारनपुर के लिए ही होगा, किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन बन गया। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपी से आप हैं तो जैसे मेरा एक बैचमेट है, उनके वो भी यूपी से थे, बेसिकली लखनऊ के थे, उनसे ये पूछा गया, बैठे 2-4 मिनट बाद कोई पूछते हैं कि यूपी से आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर्स बने बताओ, एंड ही वाज प्रिपेयर्ड, 1 2 3 4 करके बताते चले गए। अब मान लो वो चीज अगर मेरे से पूछे कोई, मान लो मैं यूपी का हूं, मेरे से कोई पूछे और मैं प्रिपेयर नहीं, तो मैं सोचूंगा कौन था यार, तो नाम ही भूल गया। उस समय इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है सिचुएशन, कुछ याद ही नहीं आएगा, फिर आप बता ही नहीं पाएंगे, 1-2 नाम बता पाएंगे, फिर आप फंबल करेंगे। तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना यूपी के बारे में, थोड़ा जो भी है कि टोटल एरिया क्या है, कितने एमपी वहां से जाते हैं, जितना भी पॉसिबल है आपके लिए यूपी से लिंक्ड अपने स्टेट के बारे में तैयार करके रखना है, ठीक है? फिर आपका जैसे सपोजिंग आपने यहाँ पे लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हु इज अ सिटीजन, क्या क्या प्रोविजन है सिटीजनशिप का? अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, बट अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि ये पॉसिबल है ना, सिटीजन है। फिर ये हो गया। फिर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप तो दुनिया भर के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट, क्या क्या चीजें हैं साइकोलॉजी में। जैसे इमेजिन करो अगर वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा क्या एटीट्यूड होना चाहिए कैंडिडेट में जिससे हमें पता चलेगा कि ये सिविल सर्वेंट बनने के लिए बने हैं, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है मान लो। अब अगर तैयार है तो आप इसका जवाब दे ही देंगे, साइकोलॉजी, है ना? या साइकोलॉजी पढ़ने से आपको क्या फायदा मिलेगा वंस यू बिकम अ सिविल सर्वेंट, है ना? फिर अगर बहुत आंसर अगर आप अच्छी तरीके से बना लेंगे कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूंगा तो आई विल बी डीलिंग विद द पीपल, मेरे अंडर जो लोग काम करेंगे, जिनसे काम लेना है वो भी लोग हैं। अब जिन लोगों के लिए काम करूंगा, जनरल मासेस, वो भी हैं, और मेरे ऊपर जो लोग हैं पॉलिटिकल मास्टर्स, वो भी तो इंसान ही है। तो मुझे तो लोगों के बीच काम करना है, और लोगों के साइकोलॉजी अगर मैं ठीक से समझ जाऊं तो मेरे लिए बहुत इजी रहेगा कि किसी एक मेरा एक ऑफिस में एक सबॉर्डिनेट है जिसका एटीट्यूड मेरे बारे में नेगेटिव है, और मुझे वो एटीट्यूड बदलना है, तो एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे पता है कि उसका एटीट्यूड किस तरीके से बदला जा सकता है।
कि हो सकता है उसका जो एटीट्यूड बना है मेरे बारे में नेगेटिव, वो किसी बायसनेस, प्रेजुडिस की वजह से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से है। मैं उससे कन्वर्सेशन के थ्रू जब मुझे पता चलेगा तो उसका एटीट्यूड बदलना मेरे लिए आसान है। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, मैं गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट विल बी इजियर, है ना। पॉलिटिकल मास्टर्स का साइकोलॉजी इस तरीके से आंसर आप बना सकते हैं। तो जितना भी हो सके इसके बारे में आप वो कर लें, ठीक है। बाकी और क्या है, कंप्यूटर साइंस तो डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे, तैयार है ना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड? पर वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को तो तैयार कर रखते हैं। हाँ ठीक है, जितना हो सके। बाकी तो और क्या है इसमें, सर्विस तो डेफिनेटली पूछेंगे। अच्छा, आपने गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते तो आपने मतलब अप्लाई करने से पहले डिपार्टमेंट को बताया है ना? जी सर, इंटीमेशन दे दिया। इंटीमेशन दे दिया है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, हॉबी हो गया। सर्विस प्रेफरेंस में नंबर 2 में पुलिस सर्विस रखा है अपने, फॉरेन सर्विस 5 में रखा है, क्यों? आप पसंद नहीं करते हैं? Sir, it is also very good service, sir. Because I am currently working in indirect taxes, so I give preference to it because I am familiar with it and I like to working in that. ओके, हाँ ठीक है, मतलब आंसर बना के रखना, ये ठीक है। बाकी तो आपका ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं पूछेंगे, तो ठीक ही एरिया है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ओवरऑल यही है आंसर। बाकी तो आप और बताओ, अगर कोई माइंड पे क्वेश्चन है तो हम लोग डील करते हैं। सर, अभी मैं डिस्कस कर रहा था एक फ्रेंड के साथ, सो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हो तो आपने आईआरएस को क्यों प्रेफरेंस नहीं दिया, फर्स्ट पे आपने आईएएस को क्यों दिया? आप इसे क्वेश्चन है, अब इसका आंसर तो है ही, आप बताओ क्या दिया है। सर, मैंने तो ये प्रिपेयर किया था कि IRS is also a very good service. It provides deep knowledge and experience in the field of taxation. But I preferred IAS because it provides diversity of experiences and responsibilities, such as line order, disaster management, policy making, and also opportunity to work in different domains and different departments and across ministries over my career span. And also because it provides more opportunities for direct interaction with the public, which is somewhat limited in the IRS. This was my answer. एकदम ठीक आंसर, बढ़िया आंसर दिया आपने। अपने सर्विस को डीमीन किया नहीं, आपने पहले ही बताया कि दिस इज ऑल्सो गुड सर्विस, और अगर मुझे इस IRS में भी काम करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा और मेरा जो नॉलेज है उसमें यूज होगा। बट मैंने IAS इसलिए दिया है या पुलिस सर्विस इसलिए दिया है क्योंकि और वाइडर है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी है IAS में, तो आई विल बी हैप्पी देयर एज वेल। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।